Hi, everybody, and welcome back to Lit Up with Annie. I hope that all of you are doing fine. The results are out, and congratulations to all of you who have qualified and everybody who sat for the exam because you have definitely achieved something or the other even by appearing in this exam. Many of you qualified for NET, many of you qualified for JRF, and many of you qualified for PhD. Some did not reach PhD, but it's all okay. It takes time. As I said, that literature, I've always said, it's an ocean and you keep diving, and it's never enough. So now is the time to start your preparation, either for JRF if you've qualified NET, or for NET/JRF if you've not qualified NET or JRF, even if you've qualified for PhD. PhD wale, as I always say, one step closer you are. Even others, see, it's not that if you've not even qualified for PhD then you are very far away. It's not like that, okay? कईयों का फर्स्ट अटेम्प्ट में भी सीधा नेट JRF हो जाता है, किसी का सेकेंड अटेम्प्ट में. It doesn't matter basically. What matters is your preparation. What matters is how you start preparing for it and how much effort you put in, how much disciplined you are in your preparation, how much determined you are in your preparation. This is what matters, your determination, your will to achieve what you want. ठीक है, तो now is the time to start preparation, and everybody has this question in mind. चाहे आपने एक बार पेपर दिया है चाहे नहीं दिया है, you completely new कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, I am completely lost, what should I do, I prepared so much. Forget everything, just relax your mind for a bit and start fresh. Okay, you have always when you start your preparation, 6 months 5 months left for the exam, you always start fresh as if you have no idea about anything. आप कंप्लीटली न्यू हैं तो आपको बिल्कुल ऑफ कोर्स स्क्रैच से सब कुछ पढ़ना पड़ेगा. आपने एक बार तैयारी की है तो रिविजन, दैट इज़ द की टू योर सक्सेस. ठीक है, कोई भी चीज़ को समझने के लिए, कोई भी चीज़ तक पहुंचने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? मैप की, है ना. आपने कहीं पहुंचना है, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा रास्ता लेना है. लिटरेचर के भी साथ वही है, या नेट एग्ज़ाम के साथ भी वही है कि आपको रास्ता पता होना चाहिए. वो मैप जो है वो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए. तो क्या मैप है? लिटरेचर का मैप. ठीक है, सिलेबस देखो, बहुत वेग सिलेबस है, सब कुछ लिखा है. ड्रामा पढ़ना है, पोइट्री पढ़नी है, फिक्शन पढ़ना है, नॉन फिक्शन पढ़ना है, शॉर्ट स्टोरी पढ़ना है, थ्योरी पढ़ना है. ठीक है, सब कुछ पढ़ना है बेसिकली. तो जब आप लिटरेचर, जो आपके 1 2 3 4 यूनिट्स हैं, दिस इज़ माई वेबसाइट बाय द वे, यू कैन विजिट. ये आपका सिलेबस है, राइट. अब जब आपने ये सिलेबस को स्टार्ट करना है, वी ऑल नो दैट क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जाम में आ रहे हैं. तो माई सजेशन वुड बी, ये जो पहले 4 यूनिट्स हैं ये आपका कोर लिटरेचर पोर्शन को कवर करते हैं. डोंट गो फॉर देम यूनिट वाइज, डोंट स्टडी देम यूनिट वाइज, बिकॉज इट विल क्रिएट chaos in your mind when it comes to chronology. ठीक है, तो ये जो पहले 4 यूनिट्स हैं इनको एक साथ प्रिपेयर करना है. जैसे हमारी हिस्ट्री की बुक होती है, हिस्ट्री बुक में एक एक चैप्टर में ड्रामा पोइट्री को ज़रूर सेपरेट करते हैं, बट पूरा चैप्टर नहीं सेपरेट करते हैं ना कि ये ड्रामा अब पोइट्री. तो उसी तरह से हमने भी करना है. वी हैव टू टेक ऑल ऑफ दीज 4 यूनिट्स टुगेदर जस्ट लाइक अ हिस्ट्री बुक. Always follow a history book when you are preparing your notes, when you want to understand this map of literature. So history book is very important. If you are extremely new, please take a basic book which gives you a basic understanding of the history of literature in English. So starting with British literature, you should take a book which gives you history of English literature, like William J. Long, a beautifully written book which gives you a very good understanding of basic history, the background of English literature. उसमें सिर्फ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स नहीं होते हैं, प्लीज़ अंडरस्टैंड. एक एक चैप्टर में आपको ये भी बताया जाता है कि इस एज में कौन से राइटर्स थे जो लिख रहे थे.
तो वो आपका बनता है नोट्स, वो आपका बनता है लिस्ट ऑफ राइटर्स जिनको आपको प्रिपेयर करना है। हिस्ट्री बुक साथ साथ पढ़ते जाओ, साथ साथ अपने नोट्स बनाओ, अपनी लिस्ट बनाओ राइटर्स की, उन राइटर्स को एक एक करके पढ़ते जाओ। ये सब आपने क्रोनोलॉजिकली करना है। हमेशा ध्यान में रखना है कि क्रोनोलॉजी क्वेश्चंस आएंगे। लास्ट में जाके क्रोनोलॉजी याद नहीं होएगी। हर चीज़ के एक्रोनिम्स बना के भी क्रोनोलॉजी याद नहीं रहेगी। कितने एक्रोनिम्स बनाओगे, कितनी ट्रिक्स बनाओगे, है ना? द ओनली वे इज, अगर आपकी प्रेपरेशन ही क्रोनोलॉजिकली हो तो ऐसा है ना, एग्जाम वाले भी इतने भी वो नहीं है कि आपको वियर्ड क्रोनोलॉजी पूछते हैं। एक दो क्वेश्चंस ठीक है, बट अदरवाइज you can attempt chronology questions if you know what came first, what came last, what came somewhere in the middle. That is the only way to attempt chronology questions. Coming to the other units, इनको आपने of course unit wise करना है। Theory, criticism पे फिर questions कम आते हैं, theory से बहुत questions आते हैं। Mainly they are match the following questions or concept based questions, sometimes works की chronology. Cultural studies is very simple, it's very limited, ठीक है, एंड इवन द अदर यूनिट्स आर वेरी स्कोरिंग। मेन जो आपका टाइम लगता है वो लगता है फर्स्ट 4 यूनिट्स में, ठीक है। अब बात आती है पहले अगर आप मेरे प्लान पे जाएं, द वे दैट आई हैव प्लान्ड, सो आई एम टेकिंग दिस फुल कोर्स फॉर योर प्रेपरेशन। वी हैड स्टार्टेड इन जनवरी एंड हम लोग यहाँ हैं, दिस इज़ वेयर वी आर। 25th से हमने अपना शुरू कर दिया था मेन जो पोर्शन है। तो बेसिकली इट वाज टुडे ओनली दैट वी स्टार्टेड विद रेनेसां एलिजाबेथन एज, एंड इट्स नॉट वेरी फार दैट वी हैव रीच्ड। अभी अभी लिटरेचर पोर्शन शुरू हुआ है। वी हैव कंप्लीटेड लिटरेरी थ्योरी एंड कल्चरल स्टडीज। सो इफ यू विश टू टेक अप द कोर्स, आई विल गिव यू एक्सेस टू इवन दैट एज एन ऑफर दैट, ठीक है, आपको लिटरेरी थ्योरी और कल्चरल स्टडीज़ के नोट्स प्लस जितनी भी क्लासेस हैं पूरा कोर्स आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगी। और लाइव क्लासेस हमारी रहती हैं दैट वी आर कवरिंग। सो दिस इज़ अ रफ कोर्स प्लान दैट यू कैन रेफर टू। इफ़ यू प्रिपेयरिंग बाय योर सेल्फ तो भी आप इसको रेफर कर सकते हो, इट्स अवेलेबल। आई हैव ऑल्सो पुट डाउन फॉर यू मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर्स की पूरी लिस्ट, सो यू डोंट हैव टू स्पेंड टाइम प्रिपेयरिंग द इंटायर लिस्ट बाय योर सेल्फ। ये देखो, ये एंग्लो सैक्सन टू एज ऑफ चौसर, या डेट्स भी लिख दी हैं आगे, क्रोनोलॉजिकली लिखा है ये सब कुछ, तो दिस इज़ ऑल गुड फॉर यू। ये काम आपका हो गया आसान, ठीक है। ना वॉट यू हैव टू डू इज़, फॉर एग्जाम्पल, यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग विद एंग्लो सैक्सन एज, you take up the writer, first writer, understand everything about the writer, understand what works he or she has written, and if it's a very major writer, go into the details of the major works also. If it is not a very major writer, it doesn't mean you don't need to know the names of the works that the writer has written. वो भी जानना बहुत ज़रूरी है, because मेजर राइटर माइनर वर्क्स, माइनर राइटर मेजर वर्क्स का एक कॉन्सेप्ट है जो नेट में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। धीरे धीरे हम टूवर्ड्स द एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे भी जाएंगे। अभी क्या है, व्हाट वी आर डूइंग इज, जैसे जैसे लिटरेरी थ्योरी किया, कल्चरल स्टडीज़ किया, तो उसके MCQs भी हम साथ में कर रहे हैं। सो आई एम ऑल्सो प्रोवाइडिंग द MCQs लाइक अ मॉक टेस्ट दैट यू कैन डू, एंड ऑल्सो थ्योरी कंप्लीट किया है तो थ्योरी पे ही प्रीवियसली कौन से क्वेश्चंस आए थे हम लोग वो भी कर रहे हैं। सो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी स्ट्रक्चर्ड कोर्स, एंड आई रियली एडवाइज कि आप लोग लो इसको, यू विल नॉट रिग्रेट इट, बिकॉज विथ मी if you lack discipline, you will get it, because I'm very particular about who is coming live. If you're not coming live, whether you are watching the recorded sessions, and I also ask every student of mine to send me their scores so that I can analyze where exactly you are, in your preparation. So these are the plans that you can refer to. I have put down a monthly plan also for those, because some students had asked कि monthly भी रख लो, they couldn't pay together, but I always recommend कि आप साथ में ले लो एक बार कोर्स if you can.
तो अभी 5 मंथ्स है, 6 मंथ्स का आप ले सकते हो, 5 मंथ्स का भी आप ले सकते हो कैलकुलेट करके. यू कैन पे फॉर दैट 5 मंथ्स ऑल्सो. दिस इज़ माई चैनल टेलीग्राम पे. ये मेरा पर्सनल अकाउंट है और ये ईमेल आईडी है. प्लस मैं टेलीग्राम जो हमारा ग्रुप है, एक जो मेन ग्रुप है, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी. आप वहाँ पे भी ज्वाइन करो एंड प्लीज़ थिंक ओवर इट एंड लेट मी नो. कनेक्ट ओवर टेलीग्राम और यू कैन कनेक्ट ओवर व्हाट्सएप ऑल्सो. यू कैन मैसेज मी देयर एज वेल. ठीक है. व्हाट आर द बुक्स दैट यू नीड? मैंने आपको कहा इफ़ यू आर बिगनिंग तो आप हिस्ट्री की बुक ले लो. अगर बेसिक लेनी है तो विलियम जे लॉग. अदरवाइज जो एक कंपल्सरी बुक पढ़नी ही पढ़नी है वो है राउटलेज पब्लिकेशन की हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर्स इन इंग्लिश. अ ब्रिलियंट बुक, वेरी नाइस बुक. जितना बार पढ़ोगे उतनी बार नई चीज़ें आपको दिखाई देंगी उस बुक में. थ्योरी के लिए पीके नायर बुक है, वो लेनी है आपने. और पीटर बैरी, ये 2 बुक्स को रेफ़र करना है और मेरे कुछ नोट्स हैं उनको आपको रेफ़र करना है. क्रिटिसिज्म के लिए एक बेसिक बुक है बी प्रसाद. क्लासिकल क्रिटिसिज्म, वो आपको इंग्लिश क्रिटिसिज्म बेसिकली का अच्छा नॉलेज दे देती है, बी प्रसाद है. और लिटरेचर के लिए कोई बुक नहीं लेनी है. और कल्चरल स्टडीज़ के लिए भी यू डोंट नीड अ बुक. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, अगेन पीके नायर की एक बुक है, वो आप देख सकते हो, बट आई don't recommend going into the details of that book because you don't need it for the exam. Research aptitude के लिए I always recommend MLA handbook पढ़ना ही पढ़ना है. उसमें questions आते ही आते हैं. MLA handbook latest edition 9th edition. And एक MP सिन्हा की बुक है रिसर्च पे, वो आप ले सकते हो. अदरवाइज रिसर्च के बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं आई बिलीव, जो आप इवन पेपर 1 में आप पढ़ रहे हो तो उस नॉलेज से आप उसको क्लियर कर सकते हो. और क्या बचा? फर्स्ट 4 के लिए कुछ नहीं लेना, लैंग्वेज के लिए भी कुछ नहीं लेना है आपने, इंग्लिश इन इंडिया के लिए भी कोई बुक नहीं लेनी. तो ये हो गई. दैट्स द बुक्स दैट यू नीड. हिस्ट्री, थ्योरी, क्रिटिसिज्म, रिसर्च मेथड्स के लिए बुक लोगी. बाकी इंटरनेट एंड माई क्लासेस एंड नोट्स. ओके. इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन एज टू कहाँ मैं शुरू करूँ, कैसे मैं शुरू करूँ, प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी. आई विल ऑलवेज आंसर. कहीं पे भी कोई और डाउट आता है, प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी. आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प. ओके. एंड आई होप टू सी स्पेशली अदर जो मेरे साथ पढ़ रहे थे स्टूडेंट्स, आप लोग वर्ज पे हो. देखो, आई फील वेरी सैड जब इतना सा आप दूर रह जाते हो एंड देन यू लीव योर प्रेपरेशन. प्लीज़ डोंट लीव योर प्रेपरेशन. पढ़ो और क्लियर करो और ख़त्म करो. ज़रूरी नहीं है 1 बार में हो जाए, 2 बार में हो जाए, कभी 3rd टाइम में भी होता है, 4th टाइम में भी होता है. ठीक है. और कोई नुकसान नहीं है आपका. इट्स एन इन्वेस्टमेंट ऑन योर सेल्फ. अगर आप अपने लिए इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो तो फिर हाउ विल यू अचीव? अपने लिए अगर आपको कुछ अचीव करना है, उस चीज़ के लिए आपको कुछ तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना. चाहे वो आपका टाइम है, चाहे वो आपका मनी है, कुछ भी है, इन्वेस्टमेंट तो आपको करना पड़ेगा. तो डोंट थिंक अबाउट दैट. वंस यू अचीव इट, वंस यू गेट अ गुड जॉब, एक बार में वो सब कुछ आपका रिकवर हो जाएगा. ओके. थैंक यू. एंड इफ एनीथिंग यू वांट टू आस्क, प्लीज आस्क मी. जॉइन आवर टेलीग्राम ग्रुप. Join this course that I have created for all of you. And if you need to ask any detail of this also, ask me. Thank you very much. See you later.